Hello everyone, welcome back to my channel. Now we are going to discuss about the scalp from the BDC. So scalp is a soft tissue covering the cranial wall from the scalp. Extend anteriorly supraorbital margin, posteriorly external occipital protuberance and superior nuchal line, and from each side superior temporal line. Structures. Conventionally, the superficial temporal region is studied with the scalp and following description. Therefore, will cover both the regions. Okay. Scalp is made up of the 5 layers. First one is skin. Second is connective tissue, skin, connective tissue. Third is a deep fascia, मतलब aponeurosis, loose areolar tissue and pericrinium. फर्स्ट स्किन, फिर connective tissue, aponeurosis, loose areolar tissue and pericrinium. The skin is adhered to the epicranial aponeurosis. Skin is hairy. It's adherent to the epicranial aponeurosis through the dense fascia. It has a more number of sweat glands and sebaceous gland. मतलब स्किन जो है वो हमारी हेयरी है, वो एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस से कनेक्टेड है. उनके बीच में कौन है? कनेक्टिव टिश्यू है. सुपरफिशियल फेशिया जो है वो उन दोनों को कनेक्ट करता है. किसको? स्किन और अपोन्यूरोसिस को. और उस स्किन में क्या है? मोर नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड है. The subcutaneous or superficial fascia is more fibrous and dense in the center than at the periphery of the head. It contains the many blood vessels. It binds the skin to the subjacent aponeurosis. It मतलब कौन? Superficial fascia और connective tissue, and provide the proper medium for passage of the vessels and nerves to the skin. The occipitofrontalis muscle has the 2 bellies. occipitofrontalis muscle जो है सामने की, किधर गई वो occipitofrontalis की? क्या इधर डायग्राम कोई? occipitofrontalis की डायग्राम, हाँ ये दिस वन इज occipitofrontalis मसल. उसकी बैक साइड पे होती है ऑक्सीपिटल की बेलीज. ये फ्रंटल बेलीज है और बैक पोस्टीरियर साइड पे भी बेलीज होती है ऑक्सीपिटल बोन की मसल की. जो मैंने अभी दिखाई वो एंटीरियर बेलीज थी. हाँ ये देखिए, ये फ्रंटालिस और ये ऑक्सीपिटलिस. फ्रंटल बेली ऑफ occipitofrontalis, posterior belly of occipitofrontalis. Occipitalis, posterior belly of occipitalis. It binds the skin to subjacent aponeurosis and provide the proper medium for passage of vessels and the nerve to the skin. Occipitofrontalis has the 2 bellies, occipitalis orbitalis and frontalis. मतलब occipitofrontalis जो है, occipitofrontalis उसी की 2 बेलीज है. फर्स्ट वन occipitalis जो पीछे की साइड होती है, एंड frontalis जो सामने की साइड हो. बोथ ऑफ विच आर इंसर्टेड इनटू द एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस. और वो किस में इंसर्टेड? एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस. द ऑक्सीपिटल बेलीज आर स्मॉल एंड द separated. ऑक्सीपिटल स्मॉल एंड सेपरेटेड है वो. हाँ अच्छा. ईच अराइजेज फ्रॉम द lateral 2/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. ये जो है ऑक्सीपिटलिस जो है वो किससे सप्लाई होती है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. द फ्रंटल बेलीज आर लॉन्गर, वाइडर एंड पार्शियली यूनाइटेड. फ्रंटल बेलीज आर लॉन्गर, वाइडर एंड पार्शियली यूनाइटेड इन द मीडियन प्लेन. ईच अराइजेज फ्रॉम द स्किन ऑफ द, वो क्या है? यूनाइटेड है, पार्शियली यूनाइटेड. ओके. इन द मीडियन प्लेन. ईच अराइजेज फ्रॉम द स्किन ऑफ द अपर आईलिड एंड द फोरहेड. उनका बोनी ओरिजिन या फिर बोनी इंसर्शन नहीं है. अराइजेज फ्रॉम द अपर आईलिड एंड द फोरहेड मिंगलिंग विद द ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली. मतलब ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली के साथ कंटिन्यू है. एंड corrugator supercilia and orbicularis oculi के साथ वो कंटिन्यू है. इट इज सप्लाइड बाय द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व से टेम्पोरल ब्रांच की वो सप्लाई है. द मसल अराइजेज द eyebrows and causes the horizontal wrinkles in the skin of the forehead. Frontal bellies.
The epicranial aponeurosis or the glial aponeurosis is freely movable on the pericranium along with the overlying and adherent skin and the fascia. Anteriorly, it receives the insertion of the frontalis. फ्रंटालिस कौन, एक मिनट, अपोक्रोनोसिस, हाँ, मतलब एंटीरियरली इट रिसीव द इंसर्शन ऑफ फ्रंटालिस, मतलब फ्रंटालिस जो है, फ्रंटालिस ये ऑसिपिटल फ्रंटालिस जो है वो इंसर्ट होता है किस पे, एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस पे इंसर्ट होता है वो. It receives the insertion of the occipitalis and attached to the external occipital protuberance, and the highest superior and the superior nuchal line in between the occipital bellies. On each side, aponeurosis is extended to the superior temporal line. On each side, aponeurosis, external occipital aponeurosis है ना, is extended to the superior temporal line, but sent down a thin extension which pass over the temporal fascia. Thin extension which pass over the, हाँ अच्छा ये, which send the thin extension. On each side, the aponeurosis is attached to the superior temporal line but sends down thin extension which passes over the temporal fascia. हाँ, मतलब ये टेम्पोरल रीजन है, उसके ये टेम्पोरल रीजन है, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबेंस नहीं है लेकिन उसका थिन एक्सटेंशन है. किसके ऊपर, टेम्पोरल फेशिया, टेम्पोरल रीजन में जो फेशिया है उसके ऊपर. ऑन इच साइड अपोन्यूरोसिस इज एक्सटेंडेड टू द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन बट sends down the thin extension which pass over the temporal fascia and is attached to the zygomatic arch. ओके, मतलब टेम्पोरल फेशिया के साथ वो कंटिन्यू है उसका थिन एक्सटेंशन. द फर्स्ट 3 layers ऑफ द स्काल्प आर कॉल्ड द सर्जिकल लेयर ऑफ द स्काल्प. फर्स्ट 3 layers are called surgical layer of scalp. This is called as the scalp proper also. The fourth layer of the scalp is made up of the loose aerial tissue. It extends anteriorly into the eyelid. It extends anteriorly into the eyelid because the frontal bellies have no bony attachment. Posteriorly to the highest and the superior nuchal line, and on each side of the superior temporal line. It gives passage for the emissary vein. कौन, loose areolar. Emissary veins are present in the loose areolar tissue which connect the extracranial veins and the intracranial veins. Emissary veins connect the extracranial veins and intracranial veins. The fifth layer of the scalp is called as the pericranium. Is loosely attached to the surface of the bone but is firmly adhered to their sutures. मतलब suture में वो tightly fix है. Where the sutural ligament bind the pericranium to the endocranium but is firmly adhered to the sutures where the sutural ligament bind the pericranium to the endocranium. Okay. Superficial temporal region. It is the area between the superficial temporal line and the zygomatic arch. This area contains the following: skin, superficial fascia, thin extension of epicranial aponeurosis, which gives the origin to the external muscles, extrinsic muscle of auricles. The temporal fascia, the temporalis muscle, temporal fascia, उसके बाद temporalis muscle, उसके बाद है pericranium. ठीक. The arterial supply of the scalp and the superficial temporal region. In front of the auricle, the scalp is supplied from backward by the supratrochlear, and the superficial temporal artery. Supratrochlear, supraorbital, superficial temporal, supratrochlear, supraorbital, superficial temporal artery. The first two branches are of the ophthalmic artery, which in turn branch of the internal carotid artery. ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है. The superficial temporal is a branch of the external carotid artery. It is a branch of external carotid artery. Supratrochlear, supraorbital and superficial temporal. Try to learn it with me. मतलब
कि अब मैं जब पढ़ रही हूँ तभी उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। इससे आप रिवीजन में या बाद में इसी जाएगा ना, टाइम बचेगा। अभी जो मैं बता रही हूँ तभी उसको याद करने की कोशिश करें। मैं एक लाइन 2-2 बार रिपीट कर सकती हूँ और कर रही हूँ, तो फिर इसका आप फ़ायदा उठाएं। फर्स्ट वन इज क्या हमने देखा कि आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्काल्प एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। तो वो हमने पहले देखा सुपरफिशियल सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच एंड external carotid artery की branch. Ophthalmic artery is a branch of internal carotid artery. Superficial temporal is a branch of external carotid artery behind the auricle. The scalp is supplied from before backward by the posterior auricular artery and occipital artery. Posterior auricular artery, 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 occipital artery. तो अब तक हमने कौन सी आर्टरी देखी? पहले हमने देखी सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्राट्रॉक्लियर। अब बिना देखे बताने की कोशिश करें। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑसिपिटल। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑसिपिटल। Thus, the scalp has a rich blood supply derived from the both internal and external carotid artery to system anastomosing over the temple. मतलब 5 ब्रांचेस देखी, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑसिपिटल आर्टरी। तो पहली दो जो है इंटरनल कैरोटरी की ब्रांचेस है, लास्ट की 2 एक्सटर्नल कैरोटरी की ब्रांचेस है। और स्काल्प में जो है स्काल्प भी सप्लाई बाय बोथ इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल भी सप्लाई करती है, इंटरनल को भी, इंटरनल कैरोटरी आर्टरी की ब्रांचेस भी उसको सप्लाई करती है। वेन्स ऑफ द स्काल्प अकम्पनी द आर्टरीज एंड हैव द सिमिलर नेम सुप्राट्रॉक्लियर। मतलब वेन जो है आर्टरी को अकम्पनी करती है। ठीक है। फिर है नर्व सप्लाई, इधर ये वेंस हो गया। वेंस। अब ये इतना ज़्यादा मैं रीड नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ये डायग्राम देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन, दिस इज सुप्राट्रॉक्लियर किधर है? ये सुप्राट्रॉक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल दोनों कंटिन्यू होते हैं। ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये फेशियल वेन। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, फेशियल वेन। फिर वहाँ पे आके डीप फेशियल वेन कंटिन्यू होती है इसके साथ। ये है टेरिगॉइड प्लेक्सिस, ये टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस जो टेरिगॉइड मसल है ना, लैटरल मीडियल टेरिगॉइड मसल है, उसके नीचे होती है ये लोग। कौन? सुपरफिशियल, ये सॉरी टेरिगॉइड प्लेक्सिस जो है टेरिगॉइड मसल के नीचे होते हैं। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, फेशियल वेन, डीप फेशियल वेन, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस, इमिसरी वेन। और ये कौन है? इमिसरी वेन है, ये भी इमिसरी वेन है जो कि कैवर्नस साइनस को कनेक्ट कर रही है। और ये है सुपीरियर इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सुपीरियर इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। दिस वन इज अ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये है मैक्सिलरी वेन। ये दोनों मिलकर रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाते हैं। उसके बाद में क्या बनता है? ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर की 2 डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन। ये है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, इसके एंटीरियर डिवीजन, ये है पोस्टीरियर डिवीजन। और ये कंटिन्यू होती है किसी के साथ? पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन डेंस इनटू द posterior auricular vein joins with the posterior division of the retromandibular vein and form the external jugular vein. Posterior auricular vein joins with the posterior division of retromandibular vein and continue as a external jugular vein. External jugular vein deeps into the subclavian vein and
कॉमन फेशियल वेन facial vein continues with the facial vein joins the anterior division of retromandibular vein and continues as a common facial vein, drains into the internal jugular vein. So पहले से फिर से देखते हैं हम इसको। हाँ, तो ये है सुप्राट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये फेशियल वेन कंटिन्यू हो गई। हाँ, ये हमारी डीप फेशियल वेन इसके साथ ही कंटिन्यू हो गई। और ये सुपेरियर ऑप्थेल्मिक वेन, inferior ophthalmic vein, this one is a cavernous sinus, this is a pterygoid venous plexus. Emissary vein connect the cavernous sinus to the pterygoid venous plexus। और ये है डीप वेन और ये फेशियल वेन कंटिन्यू होते कॉमन फेशियल वेन। ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, मैक्सिलरी वेन, ये दोनों कंटिन्यू होते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, anterior division continues with the deep facial vein and they continue together as a common facial vein. Common facial vein drains into the internal jugular vein. This one is a posterior auricular. Let me confirm it. Auricular, yes. This one is a posterior auricular vein, posterior division of retromandibular vein, and they together meet and form the internal jugular vein, and which drains into the subclavian vein. That's it. Lymphatic drainage, the anterior part of the scalp drain into the preauricular or the parotid lymph node. Preauricular और parotid, ये हाँ ये हमारा ईयर है, इसके आगे जो है यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं उसको प्रीऑरिकुलर और पैरोटिड लिम्फ नोड बोलते हैं। वहाँ पे ड्रेन होते हैं कौन, एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प का एंटीरियर पार्ट यहाँ पे ड्रेन होता है। प्रीऑरिकुलर और पैरोटिड लिम्फ नोड द सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, यहीं पे हमारी पैरोटिड ग्लैंड सिचुएटेड होती है ना रेट्रोमैंडिबुलर फोसा में। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्काल्प ड्रेन द पोस्टीरियर ऑरिकुलर ड्रेन इनटू द पोस्टीरियर ऑरिकुलर और द मास्टोइड ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। हाँ, यहाँ पे मास्टोइड फोरामेन होता है ईयर के पीछे, उसे हम मास्टोइड प्रोसेस होता है और वहाँ पे जो लिम्फ नोड होते हैं उसे कहते हैं मास्टोइड और द पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। तो वहाँ पे posterior part of scalp drain होता है। In short, the anterior part of the scalp drain into the preauricular lymph node and posterior part of the scalp drain into the posterior auricular lymph node। फिर उसके बाद nerve supply the scalp and the temple are supplied by the 10 nerve on each side। Out of these 5 nerves, 4 sensory and 1 motor, and enter the scalp in front of the auricle, and remaining 5 again 4 sensory and 1 motor। मतलब जो हमारे इस स्काल्प पे अभी ऊपर से देख रहे हैं इसमें से जो आगे 5 नर्व्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 नर्व है और पीछे 5 नर्व है और उनमें से एक मोटर है, बाकी सब सेंसरी है। इनमें से एक मोटर है, बाकी सब सेंसरी है। क्लिनिकल एनाटॉमी, बोन्स ऑफ द स्काल्प, हमारे पीछे कोई क्लिनिकल एनाटॉमी छूट तो नहीं गई, ये डायग्राम रह गई। देखिए इसमें है हेयर्स है हमारे, फिर ये क्या दिख रहे हैं, हाँ कनेक्टिव टिश्यू फेशिया, उनमें ब्लड वेसल्स है, ये एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस, लूज है कनेक्टिव टिश्यू, पेरिक्रेनियम, फिर ये सूचरल लिगामेंट, हाँ सूचर है यहाँ पे देखिए ये क्या है, हाँ पेरिक्रेनियम के नीचे सूचर से। फिर ड्यूरल वेनस साइनसेस, वहाँ से कौन आता है, ये इमिसरी वेन से, हाँ वो कनेक्ट, इमिसरी वेन क्या कनेक्ट करते हैं, इमिसरी वेन कनेक्ट द हाँ यह है इमिसरी वेन कनेक्ट द एक्स्ट्राक्रैनियल वेन एंड इंट्राक्रैनियल वेन्स, ये हो गया। फिर हाँ ये टेम्पोरल रीजन में जो है वो उसका व्यू है, स्किन है पहले,
फिर उसके बाद में हमारा टेम्पोरल मसल, टेम्पोरलिस मसल, मतलब टेम्पोरलिस मसल के नीचे, सॉरी, टेम्पोरलिस मसल के नीचे कौन है? पेरिक्रीनियम, नीचे पेरिक्रीनियम है। पेरिक्रीनियम के ऊपर मसल है। फिर उसके बाद में क्या है? टेम्पोरलिस फेशिया। उसके बाद में है एक्सटेंशन ऑफ एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर स्किन। मतलब पहले क्या है हमारा? है पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम के बाद टेम्पोरलिस मसल है। टेम्पोरलिस मसल के ऊपर कौन है? ये टेम्पोरलिस फेशिया, टेम्पोरलिस मसल का फेशिया। उसके ऊपर कौन है? एक्सटेंशन ऑफ एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस। उसके बाद कौन है? सुपरफिशियल फेशिया। और उसके बाद में स्किन है। ये हो गया। फिर ये है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस फ्रंटालिस। ओके ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस। हाँ, यहाँ पे बोनी ओरिजिन नहीं है ये। हाँ, ग्लूसेरुलर टिश्यू है। और ये यहाँ इसके नीचे कंटिन्यू हो रहा है। किसके? फ्रंटालिस के। और ये ऐसा ही। अब देखते हैं नर्व सप्लाई क्लिनिकल। Wounds of the scalp gape when the epicranial aponeurosis is divided transversally. Wounds of scalp gape when epicranial aponeurosis is divided transversally because of the abundance of the abundance of the sebaceous glands. Scalp is a common site of sebaceous cyst. मतलब स्काल्प में बहुत सारे सेबेसियस ग्लैंड है। इसकी वजह से सेबेसियस सिस्ट इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे। द वाउंड्स ऑफ द स्काल्प ब्लीड प्रोफ्यूजली बिकॉज द वेसल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिट्रैक्शन बाय द फाइब्रस fascia. Wounds of the scalp bleed profusely because vessels are prevented from retraction by the fibrous fascia. Bleeding can be arrested by applying wounds of the scalp bleed profusely, मतलब अगर स्काल्प में अगर इंजरी हुई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लीड प्रोफ्यूजली बिकॉज दे आर prevented from retraction by the fibrous fascia. Bleeding can be arrested by मतलब अगर वाउंड हो गया है तो वो ब्लड वेसल क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। लेकिन जब वो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय वो और स्ट्रेच हो जाते दोनों तरफ, क्योंकि उनके दोनों तरफ क्या है? फेशिया है। और अगर वहाँ पे इंजरी हो गई यहाँ पे तो वो फेशिया क्या करेंगे? उनको दोनों तरफ से खींचेंगे और वो ब्लड वेसल्स जो रप्चर हुए और रप्चर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे और वो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी इसमें से, फिर जो वाउंड है वो बड़ा हो जाएगा। Prevent retracting by the fibrous fascia. Bleeding can be arrested by applying the pressure at the site of injury by tight cotton bandage against the bone. Because of the density of the fascia, subcutaneous hemorrhage. Because of density of fascia, subcutaneous hemorrhage are never extensive, and inflammation in this area cause little swelling but much pain. Dense fascia. Density of fascia. Subcutaneous hemorrhage may never extensive, मतलब ये स्प्रेड नहीं होता है हिमोरेज। एंड इन्फ्लेमेशन एंड दिस एरिया कॉज लिटल स्वेलिंग मच बट मच पेन। स्वेलिंग थोड़ी सी होती है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज द पेरिक्रेनियम इज अधेर टू द सूचर। पेरिक्रेनियम सूचर से अधेर है। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड डीप टू द पेरिक्रेनियम नोन एज हेपेटोमेगाली cephalohematoma. Collection of the blood because the pericranium is adhere to the suture. Collection of fluid deep to the pericranium. पेरिक्रेनियम जो है सूचर, यहाँ पे हमारे ये ऐसे सूचर से ब्रेन के यहाँ, और ये इसके ऊपर कौन है? पेरिक्रेनियम। इसके ऊपर कौन अटैच है? हमारे पेरिक्रेनियम है। पेरिक्रेनियम इन सूचर से बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच होता है। बिकॉज द पेरिक्रेनियम इज अदर टू द सूचर। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड डीप टू द पेरिक्रेनियम। ये पेरिक्रेनियम के नीचे अगर फ्लूइड कलेक्ट हो गया पेरिक्रेनियम नोन एज cephalohematoma because the pericrinium is other to the suture. Collection of fluid deep to the pericrinium known as cephalohematoma take the shape of the bone.
हाँ, यहाँ पे ये बोन का शेप ही ले लेता है, बोन एंड कंसर्न्ड when there is fracture of the particular bone, cephalohematoma. The layer of the loose areolar tissue is known as a dangerous area of the scalp. लूज एरियल टिश्यू जो है कितना हमारा फोर्थ लेयर था ना, SCAL, हाँ, फोर्थ एरिया जो डेंजरस एरिया लूज एरियोलर टिश्यू का एरिया है वो डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प है बिकॉज ऑफ द इमिसरी वेन्स प्रेजेंट देयर विच कोर्स हेयर may transit the infection from the scalp to the cranial venous sinuses. इमिसरी वेन क्या करती थी, टेरिगॉइड विनस प्लेक्सस से किसको कनेक्ट करती थी, टेरिगॉइड विनस प्लेक्सस को कनेक्ट करती थी हमारे ड्यूरल वेनस साइनसेस से, ये इमिसरी वेन। और टेरिगॉइड विनस प्लेक्सस अगर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से वो इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में जा सकता है ना इमिसरी वेन के थ्रू, इसलिए वो डेंजरस एरिया है। द कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द लेयर ऑफ द लूज कनेक्ट टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं हम, डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प बोलते हैं। The collection of blood in the layer of the loose connective tissue causes the generalized swelling of the scalp. The blood may extend entirely into the root of the nose into the eyelids, as the frontalis muscle has no bony origin, resulting in the black eye. The posterior limb of such hemorrhage is not seen. Bleeding, if the bleeding is due to the local injury, the posterior limit of hemorrhage is seen. Because of the spread of the blood, compression of the brain is not seen. So this layer is also called as the safety layer. मतलब अगर इस लेयर में अगर ब्लड जमा हो जाता है तो वो ब्लड एक ही जगह पे नहीं रुकता, वो स्प्रेड हो जाता है, इसलिए प्रेशर नहीं इंक्रीज हो सकता ब्लड में, मतलब ब्रेन के ऊपर का एक ही पॉइंट पे प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा, वो ब्लड क्या होगा, स्प्रेड होगा, तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा ना, तो उसको सेफ्टी लेयर भी कहते हैं। Since the blood supply of the scalp and the superficial temporal region is a very less, since the blood avulsed portion need not to be cut away, then they can be replaced in the position and the situated. They usually take up and heal well. Since the blood supply of the scalp and the superficial, मतलब अगर सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन जो है कट हो जाए तो वो हील भी हो सकता है क्योंकि उसका जो ब्लड सप्लाई वो वेरी रिच है। इसका मतलब कि हमें उसे निकाल के सेपरेट नहीं कर देना है। ये नर्व सप्लाई बच गया था हमारा, नर्व सप्लाई की डायग्राम किधर है, हाँ ये है इसमें, हाँ सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल, और ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व और थर्ड ऑसिपिटल नर्व। फर्स्ट है सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्राऑर्बिटल नर्व, ज़ाइगोमैटिक नर्व, ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, दिस वन इज अ मोटार, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो है सर्वाइकल प्लेक्सस से उसकी ब्रांच है, ग्रेट ऑरिकुलर, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व ये मोटर है जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है, लेसर पेट्रोसल नर्व ये भी फेशियल नर्व की ब्रांच है लेकिन ये मोटर नहीं, सेंसरी यहाँ पे। पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व एंड थर्ड ऑसिपिटल नर्व। तो फिर चलो यहाँ पे फिर से देखते हैं हमें याद होगा कि नहीं। पहले था सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और एक बच गई, कौन है, ऑरिकुलो टेम्पोरल, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। फिर उसके बाद में ईयर के नीचे पीछे कौन है, फर्स्ट है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, उसके बाद में लेसर पेट्रोसल नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, उसके बाद में लेसर पेट्रोसल नर्व, फिर ग्रेटर ऑसिपिटल,
ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, थर्ड ऑसिपिटल नर्व। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, क्या था वहाँ पे, याद करो, इसे याद करने की कोशिश करें गाइस। चलो, इसमें था, हाँ, सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्राऑर्बिटल, ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। फिर उसके बाद में कौन था, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, थर्ड ऑसिपिटल नर्व। और इसमें से मोटर है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और दूसरी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। और यहाँ पे जो, हाँ, हमारी ऑसिपिटल आर्टरी है वो टॉर्शियस है। फिर हमें बाद में ये देखना भी है कि कौन सी आर्टरी जो है टॉर्शियस है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। और फेस, द फेस countenance extends superiorly from the adolescent's position of the hairline inferiorly to the chin and base of the mandible, and on the each side of the auricle. The forehead is therefore common to both face and the scalp. Forehead is common to both head and scalp. Okay. The skin, the skin is the facial skin is very vascular. Rich vascularity make the face blush and blanch. The wound of the face bleed profusely but heal rapidly. Result of plastic surgery on the face are excellent for the same reason. मतलब प्लास्टिक सर्जरी जो है यहाँ पे पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है। The facial skin is rich in the subcutaneous, sebaceous and the sweat gland. The facial skin is rich in the sebaceous and the sweat gland. Sebaceous gland keep the face oily but also cause acne in young adults. The sweat gland helps in regulation of body temperature. Laxity of the greater part of the skin facilitate the rapid spread of the oedema. The renal oedema appear first. ये बहुत ज़्यादा important. Renal edema appear first in the eyelid or eyelids in the face before spreading to the other part of the body. Boils in the nose and the ear are acutely painful due to the fixity of the skin of underlying cartilages. The facial skin is very elastic and thick. Facial skin is very elastic and thick. Thin नहीं है. Facial skin is very elastic and thick because the facial muscles are inserted into it. The wounds of the face therefore tend to gape. Facial skin जो है फिक्स है, इलास्टिक है और थिक है. Superficial fascia. It contain the facial muscles, all of which are inserted into the skin, the vessels and the nerves to the muscles and the skin. Variable amount of the fat is absent from the eyelid but is well developed in the cheeks, forming the buccal pads that are very prominent in the infant, in whom they help in the sucking. मतलब जो, हाँ, इन्फेंट में जो बक्कल पैड है, buccal fat is absent before eyelid but is well developed in cheeks, forming the buccal pads. buccal fat में जो buccal fat के जो pads है they are very prominent in infants, in whom they help in sucking. The deep fascia is absent in the face. deep fascia तीन जगहों पे, 3 या 4 पढ़ा था मैंने. एक स्क्रोटम में था, सॉरी, डीप फेशिया जो है वो स्क्रोटम में भी, स्क्रोटम या टेस्टिस में भी एब्सेंट है वो, और एब्डोमेन में भी एब्सेंट डीप फेशिया, और फेस में भी एब्सेंट है. डीप फेशिया एब्सेंट इन एब्डोमेन, फिर फेस और स्क्रोटम. एक्सेप्ट ओवर द पैरोटिड ग्लैंड वेयर इट फॉर्म द पैरोटिड फेशिया. मतलब कि फेस में भी सारे जगहों पे एब्सेंट है लेकिन सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड का जो फेशिया वहाँ पे वो प्रेजेंट है. द ओवर द बक्सीनेटर वेयर इट फॉर्म द बकोफेरेंजियल फेशिया. बकोफेरेंजियल फेशिया जो हमारा फेरिंग्स है, ये हमारा फेरिंग्स है, ट्रांसवर्स सेक्शन है. सपोज ये हमारा फेरिंग्स है. फेरिंग्स के ऊपर जो है
फेशिया उसको कहते हैं बक्को-फेरेंजियल फेशिया, बक्को-फेरेंजियल फेशिया। और फेरिंग्स के अंदर इनर साइड पे जो फेशिया उसको कहते हैं फेरिंगो-बैसिलर फेशिया कहते हैं, फेरिंगो-बैसिलर फेशिया। Facial muscle. The facial muscles are subcutaneous muscles. Since these muscles are inserted into the skin, these bring out the various facial expressions. So, these are secondarily known as the muscles of facial expression. These have small motor units. Embryologically, they develop from the mesoderm of the second brachial arch. Embryologically, they develop from the facial muscle. Facial muscle जो है second brachial arch से develop है and therefore supplied by the facial nerves. The morphologically they represent the base remnant of the peniculus carnosus continuous substances muscle sheet seen in some animal. All of them are inserted into the skin. ये ज़्यादा important नहीं लाइन, ये भी नहीं ठीक है. Functionally, most of these muscles may be regarded primarily as a regulator of three openings situated on the face, namely the palpebral fissure, nostrils, and the other fissure. Each opening has a single sphincter and variable number of dilators. मतलब स्पिंक्टर जो है वो सिंगल है. Sphincters are naturally circular and dilators are radiating in their arrangement. These muscles are dilators are radial in their arrangement और sphincter जो है circular है. These muscles better develop around the eye and mouth than the nose. Better develop around the eye and mouth than around the nose. Muscles of the scalp. पहला है muscles of auricularis anterior, auricularis superior, auricularis posterior. These are vestigial muscles. Muscles of eyelids प्रोसीरस. अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन हम देख लेते हैं डायग्राम में. ये है प्रोसीरस, ये है ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली से ऑर्बिटल पार्ट, लैक्राइमल पार्ट, ऑर्बिटल पार्ट, लैक्राइमल पार्ट और ये है पैल्पेब्रल पार्ट. ऑर्बिटल पार्ट, लैक्राइमल पार्ट और पैल्पेब्रल पार्ट. और ये है कंप्रेसर नेरिस, ज़ाइगोमेटिकस माइनर, ज़ाइगोमेटिकस मेजर, बक्सीनेटर. ये नीचे है राइजोरियस, ये प्लेटिस्मा, ये है डिप्रेसर एंगुलैरिस, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस. उसके बाद में है डिप्रेसर लैबा इन्फीरियोरिस, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, डिप्रेसर लैबा इन्फीरियोरिस और ये मेंटालिस. उसके बाद में ये ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे. नर्व सप्लाई ऑफ फेस देख लिया, मोटर देख लिया. ये डायग्राम देख लेते हैं. स्माइल सैड डिस्लिंग ठीक है. कॉमन फेशियल एक्सप्रेशन. टेम्पोरल फेशियल नर्व की ब्रांचेस है टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्सीनेटर, मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल. मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच. और है क्लिनिकल. फेशियल नर्व इज एग्जामिन्ड बाय द फॉलोइंग फेशियल मसल्स. फ्रंटालिस को कैसे, ये पेशेंट को हम ऊपर देखने के लिए बोलेंगे विदाउट मूविंग द हिज हेड. आस्क द पेशेंट टू लुक अपवर्ड विदाउट मूविंग द हेड. लुक फॉर द नॉर्मल हॉरिजॉन्टल wrinkles ऑन द फोरहेड. डायलेटर्स ऑफ द माउथ, पेशेंट को माउथ फुलाने के लिए बोलेंगे. शोइंग द टीथ. डायलेटर्स की बात कर रहे हैं ना, तो डायलेटर्स कैसे दिखाएंगे, शोइंग टीथ बोलेंगे. ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली, द टाइट क्लोजर ऑफ द आइज. ऑर्बिक्यूलरिस मतलब आई की मसल है, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली. और ये कौन सी थी, ये ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली है और ये ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस है. ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली और ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस. द फेशियल नर्व इज एग्जामिन्ड बाय टेस्टिंग. डायलेटर हो गया, ऑर्बिक्यूलरिस, फ्रंटालिस, बक्सीनेटर. पफिंग मतलब उसको मुंह फुलाने के लिए बोलेंगे, ऐसा गुब्बारे जैसा. इंफ्रान्यूक्लियर लीजन्स ऑफ द फेशियल नर्व एट द स्टाइलोमेटर. जो हमारी फेशियल नर्व है
वो स्टाइलोमेस्टल फोरामेन से नीचे आती है। ये हमारा स्कल है, स्कल से बाहर आती है, किसे? स्टाइलोमेस्टल फोरामेन से आती है। द स्टाइलोमेस्टल फोरामेन इज नोन एज बेल्स पैल्सी। अगर इंफ्रान्यूक्लियर लीजन हो गया तो उसे बेल्स पैल्सी कहते हैं। अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द फेस on the same side get paralyzed. Of the same side, upper and the lower quadrant of the face of same side get paralyzed. The face become asymmetrical and is drawn up to the normal side. The affected side is motionless. Wrinkles disappear from the forehead. The eye cannot be closed, leading to the keratitis. Keratitis means infection of the cornea. Any attempt to smile draws the mouth to the normal side. मतलब कि मोशनलेस हो जाता है अफेक्टेड साइड, सेम साइड का अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट जो है पैरालिस हो जाता है। फेस बिकम असिमेट्रिकल। इस डायग्राम में नीचे जो डायग्राम दिया हम उसमें से देख सकते हैं, फेस बिकम असिमेट्रिकल। फिर क्या है? wrinkles disappear होते हैं। आई कैन नॉट बी क्लोज्ड लीडिंग टू द केराटाइटिस। एनी अटेम्प्ट टू स्माइल ड्रॉज द माउथ टू द नॉर्मल साइड ड्यूरिंग द mastication. Food accumulate between the teeth and the cheek. The articulation of the labials is impaired. Tears flow out from the eyes. Saliva flows drawn from the angle of mouth. मतलब माउथ खुला होता है, वहाँ पे सलाइवा बाहर आता है। इंफ्रान्यूक्लियर लीजन। अब ये था हमारा, अभी जो देखा वो इंफ्रान्यूक्लियर। अब ये सुप्रान्यूक्लियर। बेल्स पैल्सी जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का टाइप है, मतलब लोअर मोटर लीजन का एग्जाम्पल है। सुप्रान्यूक्लियर लीजन ऑफ द फेशियल नर्व यूजुअली पार्ट ऑफ द हेमिप्लेजिया इज विथ इंजुरी ऑफ कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स उसमें डैमेज हो जाते हैं। Only the lower quadrant of opposite side of the face is paralyzed. Upper quadrant with the frontalis and the orbicularis oculi escaped due to its bilateral representation in the cerebral cortex. Only voluntary movements are affected and emotional expression remain normal. मतलब वॉलंटरी जो मूवमेंट है वही पैरालाइज हो सकते हैं, इसके अपोजिट साइड के लोअर साइड के। फिर क्या? हाँ, ओनली वॉलंटरी मूवमेंट्स आर अफेक्टेड, इमोशनल एक्सप्रेशन रिमेन नॉर्मल एज देयर आर सेपरेट पाथवे फॉर वॉलंटरी एंड इमोशनल मूवमेंट्स। हाँ, अब ये जो है हम ये डायग्राम से समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे लीजन हो गया, इंजुरी हो गई, तो ये जो फाइबर्स है, ये वाले फाइबर्स, इनमें ये ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे लीजन हो गया तो ये वाले फाइबर्स जो 3 है वो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर ये जो पाथवे है ये पूरा का पूरा ये नर्व्स डैमेज हो जाएंगे। तो फिर ये जिनको सप्लाई कर रहे हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे। अब ये किसको सप्लाई करे? ऊपर के फाइबर्स को भी और नीचे के फाइबर्स, मतलब ऊपर के पार्ट को भी नीचे के पार्ट को भी। ये फाइबर ऊपर के पाथवे को सप्लाई कर रहा है। अगर ये डैमेज हो गया तो भी तो अपर क्वाड्रेंट भी पैरालाइज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे भी ये सप्लाई कर रहा है। लेकिन इन एडिशन टू दिस पाथवे, अपर जो क्वाड्रेंट है वो सप्लाइड बाय अपोजिट साइड के फाइबर्स, जो कि वहाँ पे लीजन वो नहीं हुआ है, इस फाइबर्स को वो लीजन नहीं हुआ है। तो फिर ये फाइबर कैरी करेंगे सेंसेशन, और वही इसके थ्रू जो सेंसेशन आ रहे हैं वो इधर इस पार्ट को सप्लाई करेंगे। मतलब अपर क्वाड्रेंट जो है वो सेफ हो गया है। अब बात करते हैं लोअर क्वाड्रेंट की। अब जो ये नर्व है, सिर्फ लोअर क्वाड्रेंट को ना सिर्फ इस साइड से ही आ रहे हैं ना। ऊपर क्या था, अपर क्वाड्रेंट को अपोजिट साइड से भी आ रहे थे, इस साइड से भी आ रहे थे। तो फिर अगर इस साइड में लीजन हो गया तो ये साइड उसको सपोर्ट कर रही है कि ये भी, अगर ये डैमेज हो गया तो मैं तुमको सप्लाई करूँगी अपर पार्ट को।
ऐसा वो बोल रही। लेकिन ये जो अपोजिट मतलब ये लोअर क्वाड्रेंट जो है उसको सिर्फ इसी फाइबर से ही सिग्नल्स आ रहे हैं, एक ही फाइबर है। अरे अगर वो एक ही फाइबर डैमेज हो गया तो नर्व सप्लाई बंद ही हो जाएगा ना। इसलिए सिर्फ लोअर क्वाड्रेंट ही डैमेज होता है इन सुप्रा न्यूक्लियर लीजन में। समझ में आए? सिमिलरली अगर हम अगर यहाँ पे लीजन होता है तो फिर ये फाइबर तो गया, ये फाइबर भी गया, ये फाइबर भी गया। तब ये नीचे के पार्ट को सप्लाई से आ रहा है, वो सिर्फ एक ही फाइबर है। तो फिर यहाँ पे भी अगर ये साइड पैरालिस होगा, मतलब ये साइड पे लीजन होगा, तो अपोजिट साइड का, इस साइड का लोअर क्वाड्रेंट पैरालाइज हो जाएगा। समझ में आया? थैंक यू। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है सेंसरी नर्व सप्लाई। हाँ, और कितना बाकी है? Sensory nerve supply. The trigeminal nerve through its three branches is the chief sensory nerve supply of the face. The skin over the angle of the jaw and over the parotid gland is supplied by the great auricular nerve. Great auricular nerve का रूट वैल्यू C2 C3. Skin over the angle of jaw. स्किन ओवर द एंगल ऑफ जॉ एंड पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है और यहाँ पे एंगल है, एंगल ऑफ जॉ। ये सप्लाई कौन करता है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ये ही ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, सॉरी। और हमारी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व ये है, दिस वन इज अ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ये जो पहले हमने वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर देखी थी ना, ये है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। In addition to the most of the skin of the face, the sensory distribution of the trigeminal nerve is also to the nasal cavity, paranasal air sinuses, eyeball, mouth cavity, palate, cheeks, gums। मतलब कि palate, cheeks, gum, teeth and anterior 2/3 of the tongue and the supratentorial part of the dura mater, including that lining of the anterior middle cranial fossa। क्वेश्चन मतलब कि हाँ, स्किन जो फेस है हमारा, फेस का जो सेंसरी नर्व सप्लाई है वो कौन करता है? हमारा ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस। उसके 3 डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व के। एक है ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ऐसे 3 डिवीजन है। वो आते हैं किधर से? ब्रेन से, स्कल से नीचे आते हैं वो। फिर उसके बाद में है अभी यहाँ पे ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांचेस दी है मैंडिबुलर की, ठीक है। अभी क्लिनिकल देखते हैं। सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एक्सप्लेन व्हाई द हेडेक इज अ यूनिफॉर्मली कॉमन सिम्टम इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोज। मतलब कि नोज में जब कॉमन कोल्ड, नोज की प्रॉब्लम जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया तो फिर हेडेक क्यों कॉमन है वो हमको एक्सप्लेन करते हैं सेंसरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। पैरानेजल एयर साइनसेस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टीथ एंड गम, refractive errors of the eye, infection of the meninges as in meningitis। मतलब कि ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो मोस्टली तो सेंसरी है ट्राइजेमिनल नर्व। और उसके पूरा जो फेस है वो एक ही नर्व से सप्लाई हुआ है ना। ट्राइजेमिनल नर्व पूरा जो फेस है वो
ट्राइजेमिनल नर्व से ही सप्लाई हुआ है। फिर इसका मतलब कि अगर आई में कुछ हमको आई में कुछ प्रॉब्लम है कि आई इन रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ आई हो रहा है, तो फिर हमारा हेडेक हो सकता है। अगर या फिर इन्फेक्शन इन मेनिंजाइटिस तो भी हमारा हेडेक हो सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ टीथ, अगर हमारे माउथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि माउथ में कुछ दुख रहा है तो भी हमारा हेडेक हो सकता है। इसे ट्राइजेमिनल, क्योंकि इन सबको सप्लाई करने वाली जो नर्व है वो सेम है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में इन्वॉल्व द one or more of the three division of the trigeminal nerve. It causes attacks of very severe burning and the cladding pain along the distribution of affected nerve. Pain is relieved either by injection 90% of alcohol into the affected region of trigeminal ganglia, by the sectioning the affected nerve, और दूसरा पार्ट है by sectioning the affected nerve, main sensory root or the spinal tract of the trigeminal nerve, which is situated superficial in the medulla. The procedure is called as a medullary tractotomy कहते हैं उसे। आर्टरीज ऑफ द फेस, अब फेशियल पार्ट, फेशियल आर्टरी कोर्स, हाँ फेशियल आर्टरी भी जो है वो भी टॉर्शियस है। हमें ये टॉर्शियस आर्टरी सारी उनके नाम याद रखने हैं। सो ये पहला है सुप्राट्रोक्लियर सुप्राऑर्बिटल, ये ब्रांच है, ये दोनों ब्रांच है किसकी, सुप्राट्रोक्लियर सुप्राऑर्बिटल। ये दोनों ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है ये दोनों, सुप्राट्रोक्लियर सुप्राऑर्बिटल। इसी की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे एनास्टोमोसिस है आर्टरियों के बीच में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बीच में एनास्टोमोसिस है, क्योंकि ये मैक्सिलरी आर्टरी जो है ना, अब वो जाके आगे एनास्टोमस होती है किनके साथ, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल आर्टरी के साथ, जो कि ब्रांचेस है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ये है सुप्राट्रोक्लियर सुप्राऑर्बिटल, ये है हमारी एंगुलर आर्टरी, ये है लैटरल नेजल आर्टरी, ये है सुपेरियर लेबाइल इंफीरियर लेबाइल आर्टरी, ये हमारी बन गई। अब ये फेशियल आर्टरी है टॉर्शियस, और यहाँ से आ रही है वो इंसर्ट हो रही है वो किसकी ब्रांच है, वो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। वो यहाँ पे ये जो पीछे दिखाई दे रहा है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और यहाँ पे ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। यहाँ पे इंफीरियर अल्वियोलर आर्टरी जो मैक्सिलरी है, यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी है, टेम्पोरल ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है, और ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ट्रांसवर्स सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, और यहाँ पे है इंफीरियर अल्वियोलर आर्टरी, ये इसमें ड्रेन होते हैं, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ये सब लोग एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस है, ये यहाँ पे बताना चाहते हैं। हाँ, anastomosis, the large anterior branch anastomosis with a similar branch opposite sides with the mental artery, और mental artery किधर है, यहाँ पे mental artery है, जो कि inferior alveolar की ब्रांच, inferior alveolar ब्रांच जो कि maxillary artery की ब्रांच है, ये मैंडिबल में घुसते हैं, और यहाँ पे mental foramen से ये बाहर आ जाती है। The opposite side and with the mental artery in the lips anastomosis are large so that cut arteries spurt from both ends. A small posterior branch anastomosis with the transverse facial and the infraorbital arteries at the medial angle of eye. Terminal branch of the facial artery anastomosis with the branches of the ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मतलब कि फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस, फेशियल आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है,
ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ वो क्या होते हैं, एनास्टोमोस होते हैं। ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस। दिस इज देयर फॉर द साइट ऑफ एनास्टोमोसिस बिटवीन द branches of external and internal carotid arteries. Transverse facial artery supplies the carotid gland and the mast. Okay, the veins भी देख ले हम लोगों ने। connection between the facial vein and cavernous sinus. facial vein, deep facial vein, pterygoid venous plexus, emissary vein, cavernous sinus, ये भी हमें देखते हैं। dangerous area of the facial. The facial vein communicate with the cavernous sinuses through the emissary vein. Infection from the face can be spread in the retrograde direction. retrograde मतलब backward direction, वापस जा सकता है कि कैवर्नस मतलब कैवर्नस साइनस इधर ऊपर है, वो सारा ब्लड हमारे हार्ट में जाना चाहिए, लेकिन इन्फेक्शन वेन से इधर नीचे आता है ना ब्लड। लेकिन क्या होता है, जब हम मैस्टिकेशन करते हैं तब यहाँ का जो पैराटीरियोइड वेनस प्लेसेस है उसमें का ब्लड जो है वो रिटर्न भी जा सकता है कैवर्नस साइनस में। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि रेट्रोग्रेड मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट्रोग्रेड डायरेक्शन। और इन वेन्स में, इमिसरी वेन्स में बैकवर्ड डायरेक्शन का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए वॉल्स भी नहीं इन वेन्स में। तो लेट्स रीड। The facial vein communicates with the cavernous sinuses through the emissary vein. Infection from the face can spread in the retrograde direction and cause the thrombosis of the cavernous sinuses. This is especially likely to occur in presence of the infection in the upper lip and in the lower part of the nose. This area is therefore called as the dangerous area of the face. ये dangerous area of face है, dangerous area of face क्योंकि यहाँ पे हमारे टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीनस प्लेक्सस है। और अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो वो कैवर्नस साइनस में जा सकता है क्योंकि वो पार्ट उससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, और वो जाता भी है इन्फेक्शन क्योंकि वहाँ पे वॉल्स नहीं है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फेस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिम्फेटिक ड्रेनेज एरिया ए ड्रेन्स इनटू द पैरा ऑरिकुलर नोड्स। ये एरिया मतलब ये वाला एरिया ए ड्रेन इनटू द प्री ऑरिकुलर नोड्स। एरिया बी ड्रेन्स इनटू द सब मैंडिबुलर, बी ये है बी सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स एंड द सी ड्रेन्स इनटू सबमेंटल। सबमेंटल इधर है, सब मैंडिबुलर इधर है पीछे। सबमेंटल सबमेंटल सब मैंडिबुलर और प्री ऑरिकुलर। सबमेंटल सब मैंडिबुलर एंड प्री ऑरिकुलर। सबमेंटल सब मैंडिबुलर एंड प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, सिर्फ हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वही देखेंगे। अभी ये लैक्रिमल apparatus भी इम्पोर्टेंट है लेकिन हम इसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट आइरिड्स, लैक्रिमल ग्लैंड, इधर से हम हमारा ये भी रह गया, इधर का हम अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।